Good evening, everyone, and today is day 11 of our Power BI batch, and we are going to continue from where we left day before yesterday, which was we started with a new project which is Adventure Works. Okay, and there are seven files which we imported into this, and we created a data model by connecting the similar fields from each table, right? Now, what we are going to do is we are going to create the dashboard and visuals, okay? But before we could create the dashboard and visual, what we are going to do is we are going to learn some new visuals which we have not explored right now. And once we have done that, then I'll give you a structure of how the dashboard should look like. You will prepare some part of it, and wherever we need to have some more formulas and calculations, we will do that. And also we will do some brainstorming, wherein I would like you to give me some inputs as to what all we can include. So we will not do rote learning. मतलब I don't believe कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूं, आप उसी को देख के ना चीजें बनाएं. हम चाहेंगे कि I will would like to get some inputs from you कि how we can look at the data and what we can extract from the data, है ना. तो वो मुझे आप लोगों से input चाहिएगा, है ना. So what we will do now is, see, let us have a look at the different data tables, and let us see what we can use from each table, right? So पहला मैं product table पे आता हूँ. So everyone will go to the table view and click on the product table. So in the product table, what do we have? We have a product key. Then we have the product name. We have the standard cost. Okay. We have color, category, subcategory. This background color format and this font color format, this is actually not a part of the data. Correct. ये कुछ कोड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका क्या यूज है. दिस हम कलरिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि फॉन्ट कलर का फॉर्मेट. दिस इज अ कोड, अ हेक्सागन कोड यू कैन से, है ना. ये जो हेक्स कोड होता है उसको ये बोलते हैं. हैश लगा के आपने ये लगाया तो नंबर इट जनरेट सम कलर्स, राइट. तो ये दो कॉलम जो है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटा सेट. इट इज जस्ट यूज फॉर फॉर्मेटिंग. These six columns are actually the data set. तो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है. देन द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कलर्स. उसका सब कैटेगरी और कैटेगरी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट टेबल इज हैविंग. प्रोडक्ट टेबल में उसका प्राइस नहीं है ना. नोट दैट प्रोडक्ट टेबल हैज ओनली द स्टैंडर्ड कॉस्ट. इट डज नॉट हैव द सेलिंग प्राइस. करेक्ट. नाउ वी गो टू द रीजन टेबल. In the region table, what do we have? We have the sales territory key. So region जहां जहां पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो there are 10 regions, 10 territory keys, which is joined to 10 different regions: north, east, northwest, south, central, Canada, France, Germany. फिर country है. Country is a combination of the regions, and then there is a group. So if you look at the group, there are three groups: North America, Europe, Pacific, like that. Okay. And then there are 6 countries, and then different regions, 10 different regions. तो ये लोकेशन को बताता है. ठीक है. सो वी कैन यूज द रीजन टू क्रिएट मैप्स एंड चार्ट्स एंड ऑल. वी विल डू दैट. फिर हमारे पास एक टेबल है रीसेलर की. रीसेलर में वी हैव द रीसेलर की. So this is a unique key, okay, which will have the listing of all the resellers. I'm just sorting it by ascending. So we have the reseller key, and then we have the business type. So whether the reseller, there are three categories: specialty bike shop, then value added reseller, or warehouse. Okay. Then we have the reseller name. Okay. And there are many other resellers. And then we have the city and the state and the country. So it is all the information about the reseller. It doesn't have any measure column. सारा ही dimension है. Correct. Then we have the sales table. So in the sales table, we have sales order number, we have the order date, we have the product key, reseller key, employee key, sales territory key. These four are actually connecting elements. Okay, connecting elements. Then the last four columns that we have is the quantity, the unit price, the sales, and the cost.
ठीक है. अब I have a question here. Which column can we immediately add to this data? Sir, come again, please. uh, in the sales table, which columns or what column we can add? Sales. Sir, cost you can add. Product name. Sir, Sir, product name. Hello. Yes, tell me. अच्छा, एक बात बताइए, यूनिट प्राइस और कॉस्ट क्या ये सेम कॉलम्स हैं दोनों? No, sir, there is difference. देयर इज डिफरेंस है ना. देयर आर सम different नंबर्स विच आर सेम, विच कैन बी सेम. सॉरी, यूनिट प्राइस एंड द सेल्स कॉलम. sales. They हाँ, are same. यूनिट प्राइस एंड सेल्स दे आर सेम. Yes. यूनिट प्राइस और सेल्स दोनों सेम है. So if they are exactly the same, so we need not have two columns for it, right? No, because quantity is one, so it is multiplying Sir, quantity into unit price. So that's why it is showing the sales same. If the quantity will increase, then the sales will be less of the unit हाँ, price. correct, correct, correct. Right. So you got the point. Why do we have these sales? है ना? Why do we have the because the quantity is same. अगर यहाँ पे quantity देखते वन ही है क्या या चेंज हो रहा है? So there are different quantities. Now let me select quantity 2 and show you. So quantity 2 and unit price this, then the sales will be different. Okay, it was correct. quantity 1, so same दिख रहा था, है ना? तो ये किसने आंसर दिया था? शिल्पी ने. Yes, sir. वेरी गुड. है ना? चलिए, नाइस. तो क्वांटिटी हो गया, यूनिट प्राइस हो गया, सेल्स हो गया, कॉस्ट हो गया. ठीक है. नाउ मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट कॉलम्स कैन वी ऐड इन दिस टेबल टू डू मोर एनालिसिस. और ये हमने पहले भी किया है, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? Profit, sir. एग्जैक्टली, प्रॉफिट, जीपी रेशियो. GP ratio. करेक्ट. ये मैंने बताया था ना जब हमने सैंपल सुपर स्टोर वाला डेटा सेट लिया था. वी डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग. भूल गए आप लोग सब, है ना? तो वी विल ऐड द प्रॉफिट कॉलम बिकॉज इट इज नॉट देयर. तो आप जब डैशबोर्ड बनाओगे तो प्रॉफिट ही नहीं दिखा पाओगे ना उसमें. तो फिर ऐसे डैशबोर्ड का क्या फायदा जहाँ पे सेल से प्रॉफिट ही नहीं है? तो वी विल क्रिएट अ प्रॉफिट कॉलम. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी, कैन वी क्रिएट अ मेजर ऑल्सो? तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम, एडिंग अ न्यू कॉलम एंड एडिंग अ मेजर. व्हाट इज द मेजर? Measure is a formula that you put to calculate some values. Okay, so we can calculate a profit by creating a measure also. वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं. लेकिन कॉलम हमें कब बनाना पड़ता है? जब हम हर एक रो के लिए एक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द profit for each order that is placed. Okay, so for each row of the elements there are 557,581 rows. हर एक रो के लिए मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा. सो हम लोग पहले कैसे करते थे? पहले मतलब कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने कहाँ से सिखाया था? एंड आई वांट आंसर टू कम फ्रॉम पीपल हु डोंट स्पीक, है ना? तो आई एम टेकिंग द नेम्स ऑफ द पीपल हु डोंट स्पीक. सुप्रिया. सुप्रिया देर. हाँ सर. हाँ, तो हम लोग हेलो. कैसे ऐड करते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए, प्रॉफिट कैसे ऐड करते हैं हम लोग? एक मिनट सर. सर वो खुद बैलेंस शीट फाइनल करती है सर. ये क्या? बेटर. व्हाट? अमित.
हाउ डू वी ऐड प्रॉफिट? सर पावर क्वेरी से सेल्स पहले हम लोग ने किया था, पावर क्वेरी से जाके हेल्पिंग हाँ जो कॉलम होता है उसमें हाँ जाके कनेक्ट किया था हम लोग हाँ हाँ पहले, हाँ। लेकिन आप हमें न्यू कॉलम से सिखाओगे। हम्म। प्रतीक्षा आपको पता है? प्रतीक्षा, हेलो या सर, पावर क्वेरी से करते हैं ना, फॉर्मूला अप्लाई करके। हाँ, पावर क्वेरी से करते, याद आ गया आपको, है ना? पावर क्वेरी हाँ, में कैसे जाते हैं? पावर क्वेरी में कैसे जाते हैं? ट्रांसफर डेटा के थ्रू। ट्रांसफॉर्म डेटा के थ्रू, करेक्ट. So where we when once we have imported the data into Power BI, if we want to transform anything, we go to transform data. But मैं बोलता हूँ कि आज के बाद नहीं जाना पावर क्वेरी में. ओके। तो आप बोलोगे सर फिर सिखाया क्यों? आज के बाद अगर नहीं जाना है तो why did we learn? है ना? There are multiple options of doing the thing. तो हम लोग डेटा ये अभी अगर, एडवांस लेवल होने जाना हाँ अभी है। एडवांस हो रहा है बिल्कुल. तो पहले बेसिक था, अभी एडवांस चालू हो गया आज से, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू इन द एडवांस लेवल, वी विल ऐड अ कॉलम बाय डूइंग समथिंग इन पावर बीआई इटसेल्फ, ठीक है? अभी आप लोग मुझे बताइए, आपको न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कहीं पे? यस, यस। ऊपर आ रहा है। वेयर वेयर कैन यू सी दैट? क्विक मेजर के बाजू में न्यू कॉलम, करेक्ट, क्विक ये मेजर कैलकुलेशन। के बाजू में, है ना? ये प्रॉपर मुंबई कर लैंग्वेज हाँ, मुंबई लैंग्वेज, है ना? करेक्ट। यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ मुंबई. ये जो सेक्शन है कैलकुलेशंस, ये क्विक मेजर है, न्यू मेजर, उसके बाजू में ये न्यू कॉलम है, ठीक है? ये इधर, दिस इज अ न्यू कॉलम, करेक्ट, एंड देयर इज अ न्यू टेबल आल्सो. सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम फॉर प्रॉफिट. अब हम ये पावर क्वेरी से भी कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है? वी विल बी यूजिंग न्यू कॉलम, और ये न्यू कॉलम तक पहुंचे कहाँ से? ठीक है, सो वेन यू गो टू द टेबल व्यू, जब आप टेबल व्यू पे जाएंगे ना, टेबल व्यू पे जाने के बाद यू सेलेक्ट द राइट टेबल, सेल्स टेबल, ठीक है? तब आपको यहाँ पर ये न्यू कॉलम दिखेगा, ये ऑप्शन दिखेगा न्यू कॉलम, कॉलम टूल्स का दिख रहा है न्यू कॉलम, करेक्ट? टेबल टूल्स, इन द टेबल टूल्स वी हैव डेटा, डेटा यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ से क्वेरीज रन की जाती है, यहाँ से रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है, और उसके बाद जो सेक्शन है वो है कैलकुलेशंस का. तो आज का जो क्लास है वो मोस्टली फोकस रहेगा कैलकुलेशंस के ऊपर, करेक्ट? सो देर इज अ न्यू मेजर, देर इज अ क्विक मेजर, देर इज न्यू कॉलम, देर इज न्यू टेबल. उसके बाद सिक्योरिटी, सेंसिटिविटी है, ये सब बात की बातें हैं, हम लोग आगे करेंगे, पब्लिश वगैरह ये सब सिखाऊंगा, ठीक है? बट लेट अस फोकस ऑन न्यू मेजर एंड न्यू कॉलम. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू learn today. Abhi, what is new measure? First, let me talk about measure and then we'll come to column. तो देखो यहाँ पे, जब जैसे ही मैं जा रहा हूँ न्यू मेजर पे, there is a line which is, you can see, which says write a dex expression that calculates a value from your data. ठीक है, ये बोल रहा है कि एक डेक्स एक्सप्रेशन लिखो जिससे एक वैल्यू निकल के आएगा आपके डेटा से, ठीक है? नाउ व्हाट वी विल डू, अच्छा व्हाट विल क्विक मेजर डू? Choose a list of common calculations and add the result to your selected table. तो न्यू मेजर में तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा. क्विक मेजर में क्या होगा? व्हेन आई क्लिक ऑन क्विक मेजर, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? सेलेक्ट अ कैलकुलेशन टू क्रिएट अ मेजर. सेलेक्ट अ कैलकुलेशन, एवरेज पर कैटेगरी, वेरियंस पर कैटेगरी, मैक्स पर कैटेगरी, मिन पर कैटेगरी, ठीक है? फिल्टर्ड वैल्यू, डिफरेंस ऑफ फिल्टर्ड वैल्यू, परसेंटेज डिफरेंस, सेल्स ऑफ न्यू कस्टमर्स, टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है? ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट, ये ऑल दीज, रोलिंग एवरेज, ये जितने फिन कार्ड वाले लोग हैं, रोलिंग एवरेज आप लोग को पता है ना, रोलिंग रिटर्न्स निकालते हैं हम लोग, करेक्ट? तो ये इनबिल्ट है इसके अंदर, रनिंग टोटल, टोटल फॉर कैटेगरी, लाइक दैट. एंड देन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट वी नीड टू डू,
when we need to find out profit, we need to do subtraction, correct? करेक्ट सर. हाँ, जब तक हाँ या नहीं बोलोगे मैं चुप ही रहूंगा ना. न्यू न्यू टेक्निक आई हैव टू फॉलो. when I, if I don't hear people, I'll not speak more. या लिखो, Nice. कुछ तो करना पड़ेगा आप लोगों को. या तो लिखो या बोलो. अरे, I have to calculate profit. What I need to do, I need to subtract the sales from the cost, right? Then only I get profit. Yes, Santoshi. So we will go for subtraction. Okay, so these are the options. In the text, we have star rating also. अगर आपको star rating, then a lot of things are there. Okay, so we'll click on calculate subtraction. I'm using a new measure, a quick measure, and I'm saying subtraction. Now, as I do subtraction, okay, what it is saying, calculate the difference between two values. Correct? What is the base value and value to subtract? So what should we select in the base value? Sales. And Sales what would be there and value to subscribe would be cost. cost? Correct. So sales and cost. And let's click on add. किधर आया? कोई कॉलम आया क्या? Where is the column? Where is the profit column? Last में रहेगा ना? हाँ, लास्ट भी तो हूं मैं, कॉस्ट ही तो है Oh. लास्ट कॉलम. आया ही नहीं है. ऐसा कैसे? नहीं ऐसा नहीं सर होगा. हमने खाली मेजर क्रिएट किया ना अभी. हाँ. आई वॉज कल जो वेटिंग हमने फॉर दिस ओनली. अरे, मैं आप लोग को मामू बना रहा हूँ और आप बन भी रहे हो. हमने क्विक मेजर लिया था और मैं पूछ रहा हूँ कॉलम कहाँ से आया और आप लोग बोल रहे हो हाँ आखिरी में आएगा. आया ही नहीं. कहाँ से आएगा? हमने क्या बनाया? मेजर बनाया. ठीक है. और ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी दिस फॉर्मूला बार? या Yes. क्या ये पहले था क्या? नहीं, नहीं. यस्टरडे नोट किए बोल करने के लिए. है ना? इट वॉज नॉट देयर, राइट? सी, sales minus cost. This is the name of the measure. Okay. And what is the formula they have used? Sum of sales minus sum of cost. अगर हम न्यू मेजर लिखते ना, ये हमें करना पड़ता, लिखना पड़ता, और मैं आपको सिखाता कि ऐसे लिखो. लेकिन क्विक मेजर की वजह से हमें लिखना नहीं पड़ रहा है. बट वेयर इज द मेजर? कॉलम तो नहीं आया, लेकिन मेजर कहाँ है? चलो राइट साइड में रहेगा ना जो. बिल्कुल. लेट्स गो टू द डेटा एंड लेट्स सी द टेबल, सेल्स टेबल. डू यू सी सेल्स माइनस कॉस्ट? ये कैलकुलेटर बन के आ गया. या दिस इज द मेजर. ओके. एंड do you see one more this Quick quick measure का. measure kind of thing? ये वो देखो, यही हमने यहाँ पे बनाया था और ये पहले नहीं आ रहा था विंडो, अब आने लग गया है ना? डेटा, क्विक मेजर. एंड नाउ इफ यू क्लोज दिस, यू विल सी फिल्टर्स आल्सो. सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स. ये जो दिख रहा है आपको डेटा फिल्टर, ये लेयर होते हैं जो राइट हैंड साइड में होते हैं. डेटा गायब हो गया, डेटा पे क्लिक करोगे डेटा वापस आ जाएगा. इस डेटा में अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्विक मेजर दिखाई देगा. दिस इज अ क्विक मेजर. दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली. करेक्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? Now suppose I want to rename this. How can I rename this? Because this is profit, correct? How will I rename this? Right click on this and say rename. और आप यहाँ पे लिख दो profit. यहाँ पे भी चेंज हो गया क्या फॉर्मूले में? Yes, profit equal to. है ना? पहले क्या आ रहा था? सम सेल्स माइनस कॉस्ट. अभी क्या लिख के आ रहा है? प्रॉफिट. सो इफ आई वुड हैव चेंज इट फ्रॉम हियर आल्सो. ओके. नाउ लेट्स से प्रॉफिट पर यूनिट में लिख देता हूँ. उधर भी देखेंगे आप, चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट हो जाएगा. So you can do from anywhere. Okay. Now the point is, what is the difference? Okay, this is the measure. Now I want to create a column. Now I want to create a column. ठीक है. तो क्या करें? How do I create a column?
अभी कॉलम Add ऊपर column. ऑप्शन आ रहा है कि न्यू कॉलम का? पहले आ रहा था ना, अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम इनटू द मेजर. नाउ लेट मी गो टू द टेबल टूल्स. डू यू सी अ न्यू कॉलम ऑप्शन नाउ इन द टेबल टूल्स? Yeah. Yes. सो विल क्लिक ऑन न्यू कॉलम. अब क्या हुआ? अब उसने बोला कि कौन से कॉलम में से कौन सा कॉलम माइनस करना है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं दिया है. दैट मीन्स वी हैव टू राइट अ डैक्स. वी हैव टू राइट अ फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू. सो वी विल से प्रॉफिट. Okay. Now I have created a measure named as profit. Can I create a column also with the name profit? Yes. Yes, allowed है. तो जो आपने मेजर बनाने के लिए फॉर्मूला लिखा नहीं था, देखा था, अपने आप लिख के आया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ लिख देना है. क्या? सम. नाउ जैसे एक्सेल में आप इक्वल्स टू फंक्शन लिखना चालू करते हैं और आपको फंक्शन के नाम आ जाते हैं, यहाँ पे भी आ जाएंगे. यू कैन सी सम, समराइज, समराइज कॉलम, सम एक्स. ठीक है, ये सम एक्सेल में नहीं है. एक्सेल में सम इफ होता है, राइट, ऑल दिस. तो यहाँ पे सम इफ नहीं है. करेक्ट. आई एम जस्ट कोरिलेटिंग इट विद एक्सेल सो दैट यू कैन कनेक्ट नाउ. अब इस पे आप क्लिक करोगे ना, आप आगे रीड मोर, तो इट विल से व्हाट इट डज. ऐड ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम. समराइज क्या करता है? सॉरी, summarize a summary, creates a summary in the input table grouped by specified columns. ठीक है. summarize column क्या करता है? create a summary table for the requested group totals over a set of groups. We will explore all this, लेकिन अभी हम sum से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. sum open the bracket, है ना. अब देखो यहां पर बोलेगा कि what is the input required. So what input it is requiring? column name. What is the column name? sales. ठीक है, कॉलम नेम है, तो सेल्स टेबल में से सेल्स ले लेंगे, तो क्लोज कर देंगे इसको. तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. ठीक है. दूसरा पार्ट क्या होगा? हमें क्या माइनस करना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूं, ठीक है, इफ आई डायरेक्टली टाइप लाइक दिस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट, विल इट नॉट वर्क? इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस कि सेल्स कॉलम में से कॉस्ट कॉलम माइनस कर दो, तो क्या होगा? तो भी आ गया क्या तो आंसर? प्रॉफिट आया. आएगा. प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट आया ना. We got the answers, right? हम्म. Right? So we need not write sum also. वो उसने निकाल दिया प्रॉफिट, है ना, तो लॉसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट आ गया. You're getting it? Correct. So we added a new column. Now I want to add a GP column also. Again, what I'll do, I will go to new column. सर इसमें सम लिखते तो भी सेम ही आता क्या आंसर? हाँ हाँ, सेम ही आता है ना. I will also add one more thing, gross profit equals to. Now how do I add the gross profit? How do I add the gross profit? चीपर है क्या? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स. Profit divided by sales. So I'll say profit. चीपर का सीन. ये वाला. अब देखो जहां पर हमने मेजर बनाया होगा वहां पे कैलकुलेटर दिखाएगा. सो दिस द कैलकुलेटर. इट विल नॉट शो एनी टेबल नेम, है ना, लेकिन जो कॉलम होगा उसका उसका टेबल का नेम भी होगा. तो सेल्स टेबल के अंदर प्रॉफिट कॉलम है. वी विल सेलेक्ट दिस वन, डिवाइड बाय व्हाट? सेल्स. सेल्स. ओके. एंड विल नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमारे पास परसेंटेज करने के लिए है ऑलरेडी. और इसको एंटर करते हैं. आ गया. अभी डेसिमल बहुत सारे आ रहे हैं. डेसिमल टू प्लेसेस तक चाहिए, तो आप यहाँ से डेसिमल, ये जो है इसको 0 कर सकते हैं या 2 प्लेसेस कर सकते हैं. 2 डिजिट तक हमें चाहिए. ठीक है. एंड आई विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज आल्सो. इज इट क्लियर? या. जस्ट अ मिनट.
Sir, your voice is not coming. Sir, you are on mute. Yeah, Hello, it is. Hello. Alok ji. Okay, so actually I was on a call, so I could not, I was not talking. Now see, what I have done is we have got the GP ratio column. We have created this column. Okay, we have created the profit column. Now there is something called as uh, data groups. Okay, which I want to explain you. What is data group? We can group these सिमिलर डेटा इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं है कि ये डेटा क्लब हो जाएगा। वी विल असाइन द डेटा टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो व्हाट आई हैव डन इज, जैसे कि जो क्वांटिटी है, ठीक है, आई क्लिक्ड ऑन द क्वांटिटी, आई सेलेक्टेड द क्वांटिटी कॉलम, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ। So what I was doing, I clicked on the quantity column, I selected the quantity column, then I went to data groups, है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू डेटा ग्रुप का, I clicked on the new data group, correct? Now what I got is quantity bins. Okay, so we can say quantity bin or groups, you can say quantity groups, correct? अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है लिस्ट का, एक है बिन का। बिन क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज अ बिन? बिन वर्ड आपने कहाँ सुना है? It's like a container. हम्म, Container. कंटेनर, या इट इज अ कंटेनर। ओके, Yeah. सो वी से डस्ट बिन, सो इट कंटेन्स Yeah. डस्ट, ठीक है। और बिन जो होता है बेसिकली, जब हम कॉस्टिंग पढ़ते थे, आई रिमेम्बर, जो मटेरियल कॉस्टिंग में भी एक बिन होता है, जहाँ पे मटेरियल को आप Bin सॉर्टिंग card. करते हैं Bin फैक्ट्री card. में, Bin है card. ना। Bin card. हाँ, Bin card also there for particular material का bin card रहता है. करेक्ट, बिन कार्ड, हाँ बिन कार्ड, बिल्कुल बिल्कुल, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा, करेक्ट। Yeah, bin card correct. राइट, बिन कार्ड होता है जहां पे हम वो करते हैं। तो बिन का मतलब इट इज अ कंटेनर बेसिकली। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ग्रुपिंग द क्वांटिटी सोल्ड इनटू डिफरेंट बिन्स। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया 1, और मैक्सिमम वैल्यू कर दिया 44। मतलब जो लॉट साइज है, अगर आपको याद आ रहा है, तो हमने ये काम पहले भी किया था पावर क्वेरी के थ्रू, कंडीशनल फॉर्मेट, सॉरी कंडीशनल कॉलम ऐड करके लॉट साइज बनाया था। क्या आपको याद है? यस सर। हाँ, जिनको याद नहीं है ना, सुबह रात को बेदाम भिगोइए और सुबह खाइए, ठीक है। एवरीवन रिमेम्बर्स दैट, राइट राइट राइट। तो हमने, है ना, ये लॉट साइज का वो बनाया था कंडीशनल कॉलम। नाउ वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन पावर बीआई इटसेल्फ, वी आर नॉट गोइंग टू पावर क्वेरी, बिकॉज ये सब फीचर है। तो जब सब कुछ यहाँ मिले, तो कोई वहां क्यों जाए, ठीक है। तो वो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू पावर क्वेरी। पावर क्वेरी मैंने सिखा दिया, वो आप यूज कर सकते हो। बट नाउ वी आर गोइंग टू द एडवांस लेवल, एंड वी आर लर्निंग द ऑप्शंस अवेलेबल ऑलरेडी इन पावर बीआई। तो हमने यहाँ पे साइज ऑफ बिन्स लिख दिया,
Now here we can define कि how many bins you want to create. So it is saying binning splits numeric or date time data into equally sized groups. Enter bin size. अगर 1 लिखा तो कितने बिन बन जाएंगे बताओ? 44 बिन्स बन जाएंगे. You getting it? How 44? But why Because 44 is very logic? because there are 44 this thing quantities ना 44 है और मैं Finite. एक बिन साइज एक दे रहा हूं तो 44 बिन बनेगा. एक बिन के अंदर एक ही क्वांटिटी आएगा. यू गेटिंग इट? नाउ लेट्स से हम यहाँ पे 2 करते हैं. मैं एक बार 2 लिखता हूँ. ठीक है, तो फिर कितने बिन बनने चाहिए? 22. नाउ लेट मी से ओके. सो यू विल सी क्वांटिटी ग्रुप्स. आपको दिखाई देगा क्वांटिटी ग्रुप्स. Here. You. है ना? यू विल बी एबल टू सी द क्वांटिटी ग्रुप. नाउ इन द क्वांटिटी ग्रुप इफ यू क्लिक ऑन दिस तो आप देखिए 0 2 4 6 8 44 है. सो दे आर 22 इन नंबर. आप कोई बता सकता है वाई वी गॉट 0? Sir, this group is made based on. हाँ, Sir, ये Is it less than 44? So that's why. see there are quantities ranging from 1 order size 1 to 44 units. करेक्ट Okay. है ना? 1 से लेके 44 क्वांटिटी लोगों ने ऑर्डर किया है. आप क्वांटिटी देखेंगे ना तो 1 से लेके 44 है. तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं उसको लॉट साइज में डिवाइड करना चाह रहा हूं. ठीक है, जी. एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये लॉट साइज जो हम बनाते हैं इसको हम इफ की बजाय वैसे भी बना सकते हैं. कैसे? यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ग्रुप्स करा. ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया. क्योंकि मैंने बिन साइज 2 डिसाइड किया था तो 0 और 1 जो क्वांटिटी है 0 और 1 इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1. सो इट विल बी इन द फॉलोइंग इन द ग्रुप 0. देखो 0 तो कुछ होगा ही नहीं वैसे भी. लेट मी सी के 0 में क्या आ रहा है ना? 1 0 वाले ग्रुप में आ रहा है तो 0 to 2. अगर 2 क्वांटिटी भी होगा ना तो आई थिंक इट विल फॉल इन द 0 ग्रुप. सो यहाँ पे आप देखेंगे ना आपको क्वांटिटी 1 ही दिख रहा है. ओके, लेट मी सी. लेट मी शेयर नाउ शो यू ग्रुप साइज 2. तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या आया? 10. 2 and 3 आ रहा है. करेक्ट. सो इफ आई सेलेक्ट क्वांटिटी 4 सो इट विल हैव 4 and 5 लाइक दैट. यू गेटिंग इट? तो 0 वाले में 0 and 1 था. देखिए यहाँ पे 4 and 5 दिखेगा. तो दो दो का हमने लॉट बना दिया. ठीक है, अब मैं Sir, बोलता can हूँ you show the last quantity group? क्योंकि after 14 है directly 44. एक मिनट. Sir, even 40 के बाद 44 आ रहा है. हाँ, 40 के बाद 44 आ रहा है क्योंकि 44 ही 42 43 होगा ही नहीं. लेट मी शो यू 40. जो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है ना उसका ग्रुप भी नहीं बनेगा ना. देखिए 40 के बाद 41 है. 42 43 कोई क्वांटिटी है ही नहीं डेटा के अंदर, इसलिए 44 आया. Camping. यू गेटिंग इट? सर, ये दो दो के कैसे बने? ये समझा नहीं मेरे को. मैं बता रहा हूँ वापस से ना. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू एडिट ग्रुप्स. देखिए व्हेन वी गो टू न्यू ग्रुप तो यहाँ पे वो पूछता है कि आपको क्या बनाना है, कितने साइज में बनाना है. तो बिन साइज दैट मीन्स हाउ यू वांट टू क्लब द क्वांटिटीज. देयर आर 44 नंबर्स 1 से लेके 44 तक क्वांटिटी है. अब मान लीजिए मुझे 10 10 के लॉट में डिवाइड करना है तो 10 20 30 40. तो 10 में लिख देता हूँ ऐसा. 10 लिख के मैंने ओके कर दिया. सो सी व्हाट ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड नाउ. 0 10 20 30. तो बकेट बन गए ना 4. 0 से 10 तक का क्वांटिटी एक बकेट में आएगा. 10 से 20 दूसरे में आएगा. 20 से 30 एक में आएगा. 30 से 40 40 से 50 लाइक दैट. आया समझ में? करेक्ट. है ना? सो दिस इज Sir, व्हाट इज द the use पर्पस.
हाँ, purpose. What the purpose of this so the creating purpose the group? is to now see the purpose is to see which group is giving us what sales. अभी मैं आपको पर्पस बताता हूँ ना, since you have asked this question. So when I'm analyzing my data, what I can do in the y-axis, I can put the groups. Okay, ये क्वांटिटी ग्रुप मैंने इधर रख दिया और x एक्सिस में हम सेल्स रख देते हैं. तो नाउ कैन यू मेक आउट सर कि क्या पर्पस था हमारा इसका. अब आप देखिए 0 से 10 की क्वांटिटी वाली सेल्स ज्यादा हो रही है, लेकिन 10 से 20 की कम है और 20 30 40 वाली की तो है ही नहीं. यू गेटिंग इट. यानी कि छोटी क्वांटिटी की सेल ज्यादा है सर? हाँ हाँ, मतलब कम लोग जो है वो रिटेल रिटेल ज्यादा खरीद रहे हैं, होलसेल नहीं है, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, करेक्ट, है ना. करेक्ट. और इसको और बेटर करने के लिए अभी तो मैंने 10 10 के ग्रुप बनाए हैं ना, इसको और थोड़ा बेटर डेटा एनालिटिक्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ लॉट साइज ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 10. If we have a lot size of 5 instead of 10, see what will happen in the this thing. Do you see? ठीक है. फिर भी 1 से 5 तक के में सबसे ज्यादा है. हाँ, 1 से 5 तक में ज्यादा है, फिर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ये ग्रुप ये जो है सेल्स कम होती जा रही है. रिटेल इज मोर, यस. सो इट इज द वे ऑफ लुकिंग एट द डेटा. और ये आप अगर ग्रुप नहीं बनाते तो आपको ये नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है. यू सर गेटिंग. जैसे आपने न्यूमेरिक चीजों के ग्रुप बनाए हैं, तो हाँ क्या हम लोग स्ट्रिंग्स के भी ग्रुप बना सकते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल थिंग्स के? हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. और वी हैव ऑप्शन टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली. लाइक अगर मैं चाहता हूँ मेरी बिन पे क्वांटिटीज होनी चाहिए 2 4 6 इन अ सिंगल बिन, सो इज इट पॉसिबल इन? Wait, sorry. So just a minute, just give me a moment. 1 मिनट आप बस मुझे 1 मिनट दीजिए. हाँ, sorry. Can you come again? What you are saying? सर आई वाज सेइंग दैट व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ बिन, राइट? तो अभी तो आपने मेरे को एक न्यूमेरिक क्वांटिटी के बिन बना के दिखाए. हम्म. So are we also able to make bins of strings like of alphabetical quantities? और जो bins मेरे numeric और alphabetical दोनों बनते हैं, क्या मैं उसको अपने हिसाब से customize भी कर सकता हूँ? Like मैं select कर सकता हूँ कि मुझे कौन से specific आप मानिए चीजें चाहिए inside a bin, like कौन कौन सी अच्छा मुझे अच्छा quantities अच्छा चाहिए. अच्छा. एक मिनट. सो लेट्स से कि हम है ना रीसेलर वाले ग्रुप पे आते हैं, रीसेलर वाली टेबल पे आते हैं. नाउ आई हैव गॉट रीसेलर्स, ओके, whose names are starting from A. ओके, ए अल्फाबेट से लेके हमारे पास वाई तक है ना, ए से वाई तक है. नाउ आई वांट टू ग्रुप देम, ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ, ऐसे 700 यूनिक 700 वैल्यूज आर देयर. नाउ आई वांट टू ग्रुप देम बाय अल्फाबेट्स, क्योंकि आई वांट टू असाइन देम टू माय पीपल. कि यार तुम ए वाले लॉट को संभालो, तुम बी को संभालो, तो सबको कॉल करके उनका सेल्स का ऑर्डर ले लो. ठीक है. तो आप काम बांटने के लिए आप ग्रुप बनाओगे ना, तो हम यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहते हैं. नाउ if we don't have numbers and we have alphabets, correct, it will not give you the bin category. वो बिन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लिस्ट वाला आएगा. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे ए वाले को मैन्युअली सेलेक्ट करके, ठीक है, मैन्युअली सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के आप करेंगे और आप क्या कर देंगे, ग्रुप. तो ये ग्रुप बन गया. यू सी Okay sir. दैट दिस वन ग्रुप, दिस द पार्ट ऑफ वन ग्रुप. कि मैं कौन कौन से पर्टिकुलर चीजों को सिलेक्ट करके आई वांट टू मेक अ ग्रुप बेसिकली. या एग्जैक्टली. नाउ सपोज आई वांट टू क्रिएट अ ग्रुप फॉर बी, तो आपने बी वाले सेलेक्ट करा और ये बी वाला ग्रुप बना दिया, तो ये बी के ग्रुप बन गए. ठीक है. सिमिलरली सी वाले सेलेक्ट करे मम्मी और सी के ग्रुप्स बना दिए, है ना. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. ए बी सी हम करते हैं, तो ये हमने कर दिया और ग्रुप कर दिए. ठीक है, ये 3 ग्रुप बन गए. नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके. सो वेयर आई गेट टू सी द ग्रुप्स हियर, है ना. तो ये ग्रुप यहाँ पे आएंगे.
और ये जो नाम दिए गए ग्रुप के, कैन आई चेंज द नेम ऑफ द ग्रुप्स? सो यू कैन गो टू रीनेम नाउ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सो यू विल सी, ये जो है, दीज आर द ग्रुप्स, ए, ये बी और ये सी, ये तीन ही ग्रुप है बेसिकली, बाकी सब तो ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीन मैंने सेलेक्ट करे, नाउ सपोज आई क्लिक हियर एंड आई से रीनेम। ओके, सॉरी, आई क्लिक ऑन दिस वैल्यू एंड आई से रीनेम। अच्छा, तो ये रीनेम इसको नहीं करेगा, इसको मुझे फिर वैसे रीनेम करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में जाके, है ना? तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, है ना? So you want to see कि how many suppliers I have which are from A category, A alphabet, B alphabet and C alphabet, क्योंकि I want to assign them to my team। तो कितने लोग किसको असाइन होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना के, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू रीसेलर, और यहाँ पे रीसेलर ग्रुप होगा, तो ये रीसेलर ग्रुप डाल दो और उसके सामने हम रीसेलर डाल देते हैं। ठीक है, और वो जो रीसेलर है उसके नाम नहीं चाहिए, हमारे को काउंट चाहिए, तो यू विल गो टू रीसेलर एंड यू विल से काउंट डिस्टिंक्ट, है ना? तो ये देखो, ये तीन ग्रुप जो है ना, यहाँ से सी डी से लेके हमारे को ये लोग नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिकली इनका ग्रुपिंग नहीं किया है आपने, करेक्ट? तो इनको हटा के बाकी यू कैन सी दीज आर द ABC ग्रुप्स, है ना? 31, 38 एंड 52, ऐसा। So this is the benefit of creating a group. You understood, everyone? Yes. So is there any possibility to rename this? जैसे आप अभी दिखा रहे थे, how do we rename? You were telling. वही मैं देख रहा हूँ। I am also exploring this possibility. It Hmm. will be fully beneficial in the case of major only, right? Sorry. It will be benefit only in case of majors, like हाँ, have it you will be seen that? benefit only in case. हाँ, see, everything we are doing, whatever grouping or calculations or measures we are doing, it is beneficial only when we do want to do analytics. Correct? जो भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी बेसिस पे हम कर रहे हैं, अदरवाइज तो पर्पस ही क्या है उसका? यू गेटिंग इट? Yes. I not getting that option to rename the groups. Okay. सर हाँ, सर आप अभी इसमें गए थे ना जहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ ऊपर नाम में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे तो ये इसका नाम चेंज होगा ग्रुप का, ये इंडिविजुअल ग्रुप के नाम चेंज नहीं हो रहे ना। एक बार यहाँ पे जैसे रीसेलर के आगे मैं लिखता हूँ रीसेलर ABC, ये मैंने लिखा, ठीक है, और ओके कर दिया। सो द यहाँ पे देखिए, ये रीसेलर ग्रुप ये एडेड हुआ है ABC। करेक्ट। उसके अंदर के जो लोग हैं ना, मतलब उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं, दे आर नॉट गेटिंग एडिटेड, ये है। So we can continue as of now. अगर whenever you get to know, we can. या श्योर आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट वेदर इट इज पॉसिबल नॉट। पहली बात तो होता भी है या नहीं होता, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आई लेट यू नो, ओके, इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। Okay. So this is the benefit. Now what I did is, this graph I have not explained. This is the funnel chart. तो हमने क्या करा, जो हमने ये ग्रुपिंग किया ना, क्वांटिटी का जो बिन बनाया है। So now you can see that out of total sales, 46 million sales is coming from the quantity 0 to 5। 5 to 10 में 26 million सेल हो रहा है, 5 million यहाँ हो रहा है, और ये बाकी सारा ऐसा है। So if you use the right visuals, you will be able to understand। यहाँ पे ये वाला ट्री मैप बना के देख लो तो आपको पता पड़ जाएगा कि 0 to 5 में ये है। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट अक्रॉस डिफरेंट थिंग्स। पाई चार्ट बना के भी देख सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द डेटा लाइक दिस। तो ये भी दिखा रहा है कि हमारा जो सेल्स आ रहा है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्वांटिटी ग्रुप्स एंड द सेल्स, सम ऑफ सेल्स। करेक्ट? So I think you understood like what is the difference between creating a column and creating a measure। ठीक है, हमने मेजर का बनाया था सेल्स वाले ही टेबल में, आप देखेंगे
So there is a measure for profit per unit. There is these are columns. So columns आपको ना जो आपने बनाए हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगे. You will see an icon, our table and a sigma. So these are created columns. Okay, and this is a measure. Now, what is the purpose of this? Let's say we want to find out the GP ratio based on something. So I was exploring the data. मान लो मुझे region wise निकालना है, तो मैंने क्या करा, country लिया. So if I select a country, I'll get all the country names. I'll increase the size of this. So values में जाएंगे, इसको 15 कर देते हैं. तो ये आ गया आपका कंट्रीज का नाम आ गया. ठीक है, कंट्रीज के नाम के सामने आप क्या करेंगे, सेल्स डाल देंगे. तो विल ऐड सेल्स. तो सेल्स डाल दिया. We'll add profit also, and we will add the GP ratio also, gross profit. Correct? It is Sum की combined. जगह in the profit we should have average. So this is the table which is having the columns. Correct? तो ये सेल्स हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये जीपी रेशियो हो गया. अब मुझे बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में व्हाई इट इज शोइंग पॉजिटिव 2.93. यहाँ पे तो लॉस है 80,000 का. Because एंड it's an average GP rate. सॉरी सर, Because it's an average GP rate. हाँ, it is the average, yes. So it is the overall, it is absolute and it is average, correct? Average, yeah. Yes, yes, yes. Secondly, so this is a table, right? Now suppose I do one thing. I have created a measure also. So in the table, what we have created, if I add a measure as well, so this is the measure, profit per unit. तो आपको ये कॉलम भी मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन ऐड अ मेजर एज वेल एज अ कॉलम. दिस सेम थिंग हैज कम. तो जो आपके कॉलम से आया वो आपको प्रॉफिट से भी आ गया. करेक्ट. बट मेजर का बेनिफिट क्या होता है कि व्हेन यू इंसर्ट अ कार्ड एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट पर यूनिट और पर टेरिटरी और समथिंग लाइक दैट, यू कैन नाउ सिंपली ऐड द मेजर फ्रॉम हियर. लेट्स से हमने प्रॉफिट पर यूनिट लिया, तो ये आ गया प्रॉफिट पर यूनिट. ठीक है, इसका हम डेसिमल दिखना चाहते हैं, कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे, वी कैन से डिस्प्ले यूनिट्स नन, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट दिखाएगा. ठीक है. And now if I want to see country wise, so what I can do is I can click on any country here, Australia. So it will show Australia wala moment, France. Okay, like that. Now we will conclude here today, and I'll just show you a simple map. ये आप बना के रख लेना everyone, है ना. Do this as a part, and I'll just share some homework in the group as well. ठीक है, तो location में we'll put country. And I will have to log out. Actually. That's why it is giving me problem. Location may will put country. And in the bubble size, we will put sales. है ना. अब आप मुझे बताएं, यूएसए एक ही कंट्री क्यों दिखा रहा है मैप में? Why it is showing me only one country? You selected US. तो वहाँ पे सिलेक्टेड ओनली यूएस है ना, लास्ट वाला. मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं. वेरी गुड. और जिन लोगों का आंसर नहीं आया उन लोग का ध्यान किधर है? वो घड़ी देख रहे हैं कि इस ना सवाल स्लीपिंग समझ मोड, गए. दे आर नॉट नहीं स्लीपिंग सर, मोड. ध्यान है हमारा भी. है, आप लोग का भी ध्यान है. अच्छा, फिर आंसर क्यों नहीं देते हो? देने तक सामने से आंसर आ गया ना, तो फिर अनम्यूट कर दिया. तो आप सोचते हो कि कोई दूसरा कर रहा है तो हमको क्यों करने का, है ना. तभी बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे. अच्छा अच्छा अच्छा.
वेरी स्मार्ट। चलो, तो वी हैव गॉट दिस मैप। और वो मैंने एक ही कंट्री सिलेक्ट कर रखा था, तो जब आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको पूरा वो दिखाएगा, ठीक है। एंड व्हेन यू डोंट सेलेक्ट एनीथिंग, व्हेन यू क्लिक आउटसाइड द टेबल, यू विल सी द मैप विथ ऑल द कंट्रीज एज बबल, है ना। उस बबल साइज को भी हम कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। बट आई वॉन्ट यू टू ऑल प्रैक्टिस इट, है ना। बिन बनाएंगे आप लोग, बिन और कॉलम और मेजर, हमने तीन चीजें करी हैं। मेजर और कॉलम में भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेजर कब ऐड करना है और कॉलम कब ऐड करना है। Column is to be added when you want to do a calculation for each row in the data, then you have to add column. Otherwise, even without adding column, you can do. और हमने ग्रुपिंग भी किया है, तो क्वांटिटी ग्रुप बनाया है या हमने अल्फाबेटिकली ग्रुप बनाया है। यू कैन क्रिएट अ ग्रुप विद द डेट ऑल्सो, है ना। तो डेट ग्रुप्स भी बन सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट, जैसे यहाँ पर आप डेज का ले लें या मंथ्स का ले लें। तो व्हेन यू सेलेक्ट डेट, इट ऑटोमेटिकली गिव यू ऑप्शंस, है ना। तो 12 महीने का आप ग्रुप बना दे तो मंथ वाइज भी आपका कंबाइन हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे हमें ये बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन दिस ऑल्सो वी ऑलरेडी गेट, सो नाउ इट इज गिविंग द ग्रुप्स ऑल्सो। सी जनवरी 17, जनवरी 18, 19, 20, लाइक दैट, ऐसा। ओके, सो वी विल एंड दिस सेशन ओवर हियर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। ये प्लीज। आपने रेड बॉक्स बना के वो एरो साइन किया है ना, वो आपने वो लिंक किया है क्या? वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है वो। नहीं नहीं, ये बॉक्स कैसे बनाए ये पूछ रही हो, या हाँ, ये? मतलब वो बॉक्स बनाया क्यों है? क्योंकि वो लिंक करके फिर वो आपको ये बिन्स आ रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए है। मैं समझा रहा था कि वो डेटा ग्रुप्स ऐसा होता है, तो मैंने बॉक्स बना दिया था कॉलम ऐड करने के लिए ना। ओके ये ओके। तो जूम का एक फीचर है, एनोटेशन। तो ये हटा देता हूँ मैं, इसका पावर बीआई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये जूम में ही आता है सर? ये जूम में आता है। जूम में यू गेट वन एनोटेट ऑप्शन, सो अच्छा। यू कैन लाइक डू लाइक दिस, ठीक है। ओके। आप ऐसा ये कर सकते हैं, है ना। और इवन देर आर डिफरेंट शेप्स, सो आई कैन क्रिएट अ डायमंड शेप लाइक दिस। ये सब जूम के ऑप्शंस है। आई कैन स्क्रिबल ऑल्सो, आई कैन राइट ऑल्सो, ये सब ऑप्शंस है। टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस ये इज, ये सब कैसे आता है ऑप्शन, ये एनोटेट? सर आई थिंक इन योर स्क्रीन ऑल्सो, तो यहाँ पे एनोटेट का ऑप्शन आता है। कहाँ पर? आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक पेंसिल जैसा बना हुआ है। सो आई वेयर? थिंक यू क्लिक ऑन दैट, यू कैन एनोटेट ऑन द स्क्रीन। सर मोर में जाके है क्या? हाँ, नहीं मोर सर। में होगा, आप लोग के मोर में होगा, मेरे को तो सामने ही दिख रहा है। मोड में कहाँ हाँ, पर? मोर कहाँ में हुआ? ट्रांसक्रिप्ट है। ऑडियो, ऑडियो वीडियो नो, आई इसके थिंक ऊपर ही ओनली द है। होस्ट कैन डू द एनोटेशन, ओके। इसलिए ओके। आप लोग को नहीं दिख रहा हाँ। है ना। नहीं तो मेरी स्क्रीन पे सब लोग डायग्राम बनाएंगे। है ना, इसलिए ओनली अच्छा। इट इज द विद द होस्ट, है ना। एंड इफ आई मेक समवन होस्ट, जब मैं कोई स्क्रीन शेयर करता है ना, तो उसके बाद एनोटेट का ऑप्शन आता है। सो एनोटेशन इज जस्ट लाइक व्हेन यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, और ये तो ओके। टीचिंग हाँ टूल्स की जैसे जैसे मेरे कर्सर पे अब आपको एक रेड डॉट दिख रहा हाँ हाँ हाँ। है ना। तो दिस इज जस्ट टू फोकस, जैसे हम लेजर लाइट या करते हैं, वैसा वैसा है। ले जा लाइट। सो पर्पस बिहाइंड द डेटा ग्रुप को फोकस करने के लिए कि डेटा ग्रुप हमने कैसे बनाया, उसके लिए आपने वो रेड रेड टेबल बनाया है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फोकस करने के लिए कि यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसा, तो वो है। गॉट इट या अंडरस्टूड करेक्ट। सर। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस प्लीज। Sir, in the map table, हाँ if you have the local data like Indian city names, हाँ, uh, will it be able to show that also, sir? यस यस, व्हाई नॉट। इंडिया का मैप आ जाएगा पूरा, अगर इंडिया की सिटी नेम्स होंगे तो, Okay, है ना। इफ यू हैव सम डेटा विच हैज इंडियन सिटी नेम्स, तो पूरा आपको इंडिया का मैप दिखाई देगा, है ना। okay, ये देखो, हमारा भारत माता दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर है मैप में। ये देखो इंडिया है ना? तो इंडिया के अंदर की सारे स्टेट्स और सिटीज भी आ जाएंगे। इफ ये देखो, आ रहे हैं, सारे दिख रहे हैं नाम। like okay, कैन यू सी माई स्क्रीन? yes, sir. हाँ, तो ये यू विल बी एबल टू, इफ वी हैव द डिटेल्स वी विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है।
इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ओके शो दैट। मंडे को मैं ना जीएसटी का डेटा लेके आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगा कि किस स्टेट से कितना रेवेन्यू आता है। ओह, ये बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। Yes, it will be on Monday. Saturday and Sunday is for you to stare at your wife. And those who are single can stare at whomsoever they मिरर want. They are free. मिरर